خوب یوزارسیف. پوتیفار کا دعویٰ ہے کہ تم ایک نکتہ ہو. تم مصر کی عظمت و بلندی اور شان و شوکت کو کیسا پاتے ہو؟ اگرچہ بزرگوں کے روبرو علمیت کا اظہار کرنا بے ادبی ہے، لیکن اب جب کہ فرمانروا کا حکم ہے تو بیان کرتا ہوں. مصر کی عظمت و بلندی میرے لیے قابل تعجب ہے. جو مجھے بلند و بالا پہاڑوں اور اونچی اونچی چٹانوں کی مثل دکھائی دیتے ہیں، لیکن میری رائے میں سرسبز اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ان بڑے بڑے پہاڑوں کی نسبت کہیں زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ ان پر جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس تو ہوتی ہے. کیا واقعی تمہاری نظر میں مصر کی قدرت و عظمت بلند و بالا پہاڑوں کی مانند ہے؟ بالکل ایسا ہی عالی جناب، لیکن اگر قدرت مظلوموں کی دادرسی میں صرف ہو تو مستحسن ہے. آفرین آفرین یوزارسیف، تم نے ثابت کر دیا کہ جناب پوتیفار کا دعویٰ بلا وجہ نہیں. تمہارا تعظیم کرنا ایک ولی عہد کے شایع نشان نہیں. جس کی رگوں میں خداؤں کا خون ہو وہ اپنے بندے کی تعظیم نہیں کیا کرتا. میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا ماں، نہ جانے کیوں میں اس کی تعظیم بجا لایا. کیا جناب پوتیفار محض اپنے مذاہب کا تعارف کرانے کی غرض سے یہاں تشریف لائے تھے؟ نہیں عالی جناب، در حقیقت معبد آمون کی سپاہیوں کی خود سریوں اور فتنہ پرویوں کی شکایت کی غرض سے حاضر ہوا تھا. عمومی شاہراہوں پر فتنہ اور فساد برپا کرنا اب ان کا روز کا معمول بن چکا ہے. انہیں نہ تو کسی کا ڈر خوف ہے اور نہ ہی کسی قانون کا لحاظ. ان کی سرکشی اور قانون شکنی حد سے بڑھ گئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر ان کی لگام نہ کھینچی گئی تو وہ حکومت مصر کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کریں گے. آمون اور کاہنان معبد کی مخالفت کرنا کفر ہے. آمون کا معاملہ معبد کے کاہنوں سے جدا ہے. اگر ہم آمون کے معتقد ہیں تو پھر ہمیں کاہنوں کی سرکشیوں اور فتنہ پروریوں کی سرکوبی کے لیے کوشاں رہنا ہوگا. لیکن فی الحال میں اجرت بازی کے حق میں نہیں. میرے ذہن میں ان کی سرکوبی کے لیے کچھ منصوبے ہیں. کسی مناسب وقت اور درست فیصلے تک نرمی سے کام لو. تمہیں خود پر فخر کرنا چاہیے. میں نے تم جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سپاس گزار ہوں علی جناب، میں نے بھی آپ سا مہربان اور سخی انسان نہیں دیکھا. ان قریب سخت جنگ درپیش ہے، تیاری رکھو.
रुदमू, जी आली जनाब। एक ज़हीन और लायक शागिर्द अब देखना है कि क्या जौहर दिखाते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये कवि और शुजा बने। मुझे क्या करना होगा जनाब पूतिफार? जनाब पुतिफार चाहते हैं कि आप युजारशीफ को फ़नून हरब की तरबियत दें। शमशीरबाजी, तीरंदाजी, नेज़ा फेंकना और घोड़सवारी वगैरह की तरबियत दें। इत्मीनान रखो, तुम्हारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैं अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूआकार लाकर इसकी तरबियत करूंगा। आप इत्मीनान रखिए आली जनाब। आओ मेरे साथ। मशकी तलवार, ये तलवार है? ये बचकाना तलवार है। जो भी तलवार हाथ में लेने का इरादा रखता हो तो उसे इब्तिदा में इस चोबी तलवार से मशक करना पड़ती है। तैयार हो? अपना दिफा करो। आफरीन, तुम्हें चाहिए कि मेरी तलवार के वार को रोको। तैयार हो? अगर तलवार होती तो इस वक्त तुम्हारा पेट चाक कर दिया होता। अब तुम वार करो। मैं आप पर वार करूं? हाँ, जोर से मारो। आपको दर्द हो जाएगा, मेरा दिल नहीं मानता। मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। मारो। जी बेहतर, आप खुद ऐसा कह रहे हैं। जब जो भी तलवार के साथ मशक करना तुम्हारे लिए दुश्वार है तो सोचो कि फौलादी शमशीर का वजन कैसे बर्दाश्त करोगे। कोई भी नास परवरदा क्यों ना हो, मुसलसल मशक से माहिर हो जाता है। अनकरीब तुम्हें फौलादी शमशीर हाथ में लेना पड़ेगी। ये चोबी शमशीर तो अभी इब्तिदा है। जारी रखें। पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, मैं इस खनाने गुलाम से मुतमईन नहीं। युजारशीफ? जी हाँ, युजारशीफ। वो मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मैंने देखा है कि वो किस तरह मोहब्बत में खुदाए आमून और परिस्तिश की रसूमात की तज़हीक करता है। बस करें कारी मामा, कैसा खतरा? मेरी समझ में नहीं आता इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरे साथ आए, मैं जानता हूँ ये चीजें कहाँ ले जानी चाहिए।
कहाँ जा रहे हो युजार सिर्फ? आए तो जान जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं। आ जाएं, आपके लिए खाना लाए हैं, ये सब आप ही के लिए है, ले लीजिए लीजिए लीजिए। ध्यान से निशाना लो। आफरीन। आफरीन आफरीन आफरीन। आफरीन आफरीन। तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो गए हो। युजार सिफ के लिए रुदामुन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे।
مصر کے آسمان پر تو برسوں ہوئے کسی بادل کا گزر نہیں ہوا. ہوائیں بھی بے قرار ہو رہی ہیں. لگتا ہے کہ آپ کے اندر کی آشفتگی کی ہواؤں کو بھی خبر ہو گئی ہے. ہوائیں خوشخبری کا پیغام ہوا کرتی ہیں. ملاپ کی ان حسین گھڑیوں میں یہ بھی خود کو میری خوشی میں شریک گردانتی ہے. خدایا وہ جو بگھی پہ سوار ہے وہ میرا یوسف نہیں ہے. نہیں باپا، ان لوگوں میں سے کوئی بھی یوسف نہیں ہے. وہ بھی آ جائے گا، آ جائے گا. وہ لوگ آ گئے، ایک طرف ہو جائے. یہاں تک اب زیادہ فاصلہ نہیں رہا عالی جناب. یوسف سے ملتے وقت ان کی کیا حالت ہوگی. ان کی تو ابھی سے حالت غیر ہوئی جا رہی ہے. آپ کی حالت تو خود ان سے کچھ کم نہیں. گھبرائیں مت. اگر خدا نے چاہا تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. خود پر قابو رکھے مادر جان. اے میرے بے قرار دل، پرسکون ہو جا. اتنے زور زور سے مت دھڑک. کیا آج مجھے میرے دل کے چین سے ملاقات نہیں کرنی ہے تو پھر میرے سینے کی دیواروں سے اپنا یہ سر پٹکنا کیوں؟ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ آیا کیوں نہیں اب تک؟ آ جائے گا پاپا، آ جائے گا. دیکھو کس شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ آ رہا ہے.
वो बचपन से ही हम पर सब कत्ले जाने की फिक्र में था और बिलाखिर बाजी ले ही गया. ये मेरा यूसुफ है, यूसुफ है. आप जानती हैं जनाब यूसुफ और याकूब नबी इस वक्त किस कैफियत में हैं? बाखुदा आसमान के फरिश्ते इन लम्हात पर खुशी के आंसू बहा रहे हैं। यूसुफ पर ये कैसी अजीब कैफियत तारी है।
میں بحیثیت فرما روائے مصر یعقوب نبی کا اس سرزمین مصر میں خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کے مبارک قدموں کو اس سرزمین اور لوگوں کے لیے خیر و برکت گردانتا ہوں۔ جناب یعقوب نبی کی آمد کو خوش بختی کی علامت تصور کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مصر جلد ہی ان کے مبارک قدموں کی برکت سے قحط سے نجات پالے گا۔ تم نے کبھی سوچا تھا کہ یوسف کا خواب ایک دن حقیقت بن جائے گا؟ ہرگز نہیں، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمیشہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی تعریف کریں۔ اے یوسف، خود کو بہترین طور پر آراستہ کرو اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مزین ہو کر دربار میں آؤ، تاکہ سب جان لیں کہ جسے خدا عزیز رکھتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو چند لمحوں کے لیے آپ کے حضور سے رخصت چاہوں گا، جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ جاؤ میرے بچے، جلد واپس آ جانا۔ یہ بانو آسناد ہیں، مصر میں یکتا پرستوں کے کاہن اعظم کی صاحبزادی اور جناب یوزارسیف کی ہمسر، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا یوسف نبی کی ہمسر، اور یہ ہیں ان کی صاحبزادی منسے، اور یہ ان کے صاحبزادے افراہیم ہیں۔ دیکھا تم نے لیا، یوسف سے ہمارے پوتا پوتی بھی ہیں، دو ننھے اور خوبصورت پھول۔ آپ کی ایک بہو اور بھی ہے، زلیخا خوبرو عاشق۔ آپ کی طرح انہوں نے بھی سالوں یوسف کے انتظار کی خاکہ عشق تو سالوں زبان زد خاص و عام رہا ہے۔ بس تم نے بھی برسوں درد فراق برداشت کیا ہے۔ درد فراق تلخ ہوتا ہے نا۔ شیرینی و دیدار و وصال تلخی فراق کو مٹا دیتی ہے۔ تمہاری عاقبت بخیر ہو میری بچی۔ یوسف دیکھ رہی ہو لیا کس قدر حسین اور باروب لگ رہا ہے۔ ہاں، ہمارا یوسف سورج سے زیادہ درخشاں، چاند سے زیادہ حسین ہو گیا ہے۔ نہیں بابا کی جان، تمہیں میرے ہاتھ نہیں چھونے چاہیے۔ تم اپنے بابا پر حق کے ولایت رکھتے ہو۔ حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں کی بوسے لوں۔ یہ یوسف ہے، تمہارا بھائی یوسف واپس لوٹ آیا ہے، وہی جو سالوں گمگشتہ رہا، وہی جس کی جدائی کی آگ میں پرسوں جلتا رہا، وہی جس کا ہم نے پرسوں انتظار کیا۔ میرا گمگشتہ یوسف واپس لوٹ آیا ہے۔ میرے عزیزو، یوسف کے مل جانے پر میں محو تھا ستاروں
और सूरज और चांद को देखने में क्या आपने बेदार कर दिया। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानू है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उठिए बाबा, उठ जाइए। देख रहे हो मेरे यूसुफ, सूरज, चांद और 11 सितारों का सजदा करना देख रहे हो? जी बाबा, देख रहा हूँ। अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर देख रहा हूँ। खुदावंद अपने जलाली और जमाली सिफात को अपने अंबिया के वजूद में मुतजल्ली करता है। यूं कहना बेहतर होगा कि औलिया खुदा अपने अमाल की बदौलत खुदावंद मुताल की बहुत सी सिफात के आइनादार होते हैं, और खुदा की ये सिफात यूसुफ में बनिस्बत दीगर अंबिया के ज्यादा जलवागर है। और अगर मैं यूं कहूं कि मेरा यूसुफ जमीन पर जलाल और जमाल खुदावंदी का मजहर और आईने खुदानुमा है, तो ये मुबालगा ना होगा। ये सब वो इनायात हैं जो मेरे खुदा ने मुझ पर की हैं। मेरा अपना खुद कुछ नहीं है। खुदावंद ने मुझे जिंदान से निजात दी, और खुदावंद ही आपको किनान से यहाँ लाया। हालांकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जुदाई डलवा दी थी, लेकिन वो तमाम उमूर में मुदब्बर और हकीम व दाना है। परवरदिगारा, तूने मुझे अजीज़ मिस्र बनाया और मिस्र की हुकूमत मुझे अता की। तूने मुझे कुदरत व ताकत अता फरमाई। इल्म ताबीर व तावील ख्वाब मुझे तूने ही सिखाया। मुझे तस्लीम और रज़ा की हालत पर मौत देना और सालिहीन के साथ महशूर फरमा। खुदावंदा, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ कि तूने याकूब के इंतजार को खत्म किया और उसकी मुंतजिर आंखों को बेटे के दीदार से रोशन किया। परवरदिगारा, तमाम मुंतजिर आंखों को मुंतजर के दीदार से मुनव्वर फरमा। खुदा ने जमीन के सिर्फ एक खित्ते पर तुम्हारे जरिए से सालेहीन में से एक अब्द साले की हुकूमत की एक झलक दिखाई है, ताकि आइंदा आने वालों को वो हुकूमत इलाहिया का एक नमूना दिखा सके। लेकिन अभी तो दुनिया के बहुत से लोग गुमराही और फुक्र और तंगदस्ती में जिंदगी बसर कर रहे हैं। साले मऊद जब तशरीफ लाएंगे तो वो मिस्र की तरह दुनिया के तमाम लोगों को गुमराही से भी निजात दिलाएंगे और जालिम और मुतकब्बिरों की साजिशों से भी। मऊद? हाँ, वही मऊद के जिनका नाम सदियों से तुम्हारा क्या ख्याल है कि कौम बनी इसराइल का मुस्तकबिल यूसुफ रकम करेगा या यहूदा? वो तो जाहिर है कि यूसुफ। नहीं शमून, नहीं। आइंदा आने वाले देखेंगे कि बनी इसराइल को यहूदी कहा जाएगा, ना कि यूसुफी।
अकबर फरमा रवाए मुख्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर ना किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल ना होता। सुन रहा हूं, किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब यूजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या उन्हें यह हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदुम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदुम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदुम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदुम भला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और काहिनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदुम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब यूजारसिफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदुम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदुम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदुम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदुम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं हैं। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदुम और उनसे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदुम खरीद सकते हैं और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदुम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हों, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदुम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे यूजारसिफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब यूजारसिफ की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं, तो आखमाहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदुम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तदारुक नहीं किया है, लिहाजा उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। किनान के लोग कहत में क्या करेंगे? खुदावंद उन पर रहम करे। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। यूजारसिफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और यूजारसिफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो। बानूती बहुत गुस्से में है। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदुम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ
तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई ना कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदम की खरीदारी के सिलसिले में आँख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के ख़जाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज़्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा ये है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफ़ी होगा कि उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाएं। बहुत खूब। होरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कसर में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कसर में वरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी। दुरूद हो मिस्र के खुदावंदगार और फरमारवाए अजीम जनाब आखनतून पर। दरूद खुदावंद बर फरमांदे पारामुआ, होरमहूब और रुदामून। अगर फरमा रवा इजाजत मरहमत फरमाएं तो जंग के तमाम सूरत-ए-हाल उनके गोश गुजार की जाए। अगरचे फरमांदे होरमहूब और लश्कर मिस्र की सलाहियतों और कामयाबियों की खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खुद उनकी जबान से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। ये सब खुदावंद आखनतून के लुत्फ व इनायत है। आमुन हेतियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म कर रखा था और अपने मफाद के मुताबिक कवानीन वज़ा किए हुए थे। उन्हें एक ही हमले में शिकस्त फाश देकर उनके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी मस्तूरात और बच्चों को कैद कर लिया और नतीजतन कसीर माल गनीमत लश्कर मिस्र के हाथ लगा। बाद शिकस्त तमाम लश्कर के सामने उनके बादशाह की माँ अहलो अयाल गर्दनें उड़ा दी गईं और उनके अजसाद। मैं फरमांदे होरमहूब की पैदर पे कामयाबियों और जाफिशानियों को कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना बाकी है। मुझ में कत्ल गारत गरी के मुतालिक सुनने का हौसला नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तेहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों की मरहून मिन्नत है, और अगर आपकी शुजाअत और इस्तेकामत न होती तो शायद आज मिस्र भी न होता। जनाबे फरमा रवा जंगी सूरत हाल के मुतालिक तो सुन लेंगे, लेकिन खून खराबे के जिक्र से इज्तनाब कीजिए। जनाब होरमहूब, कुछ इस तरह जंगी अहवाल बयान कीजिए जो खुदावंद आखनतून को आजूदा न करे। बिनरूस, हमारे बहादुर और थके मांदे फौजी सरबराहान की खातिर तवाज़ो नहीं करोगे? मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदाम करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है? जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और असनाद, हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अक़लियत में तब्दील हो चुकी है और उसके ख़जाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है, और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद
मिस्र के लोगों का सरकारी आइन आइन यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरम हूँ, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद कि माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदाबंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म के ताबे हूं, अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझें। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई खून रेजी न हो। जनाब अखनातून और जनाब यूजार सिर्फ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। फरमारवा जनाब यूजार सिर्फ को एक रहनुमाए इलाही की नज़र से देखते हैं। ऐ नबी खुदा, दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान ज़ाया न हो। आला आदाब के हुसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बसा औकात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारज़े में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को गलबा अता फरमाएगा। पादियामुन और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग और तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकता परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा। जगह जगह ऐलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाज़त नहीं और यकता परस्तों के साथ जुल्म और ज़्यादती की सूरत में सख्त सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मेरे खुदाबंदगार का सरकारी आइन की तब्दीली और आइन आमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र, जनाब यूजार सिर्फ तशरीफ ला रहे हैं। सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिना ने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूं कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खून रेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तिनाब किया जाए।
اور اصلی محرکین کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ اطاعت عالی جناب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ آج شہر بھر میں چراغاں، لیکن آپ کی عدم موجودگی میں آمون نے پھر کبھی کلام نہیں کیا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آمون جسے اپنے تحفظ کے لیے بھی کاہنوں کی مدد درکار ہو کسی سے کلام کر سکتا ہے؟ غیر منطقی دلائل سے عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جناب یزار سیف کو نہیں دے سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آمون کے نزدیک والی کھڑکی سے آواز کو تھوڑا بہت بدل کر میں ہی لوگوں سے کلام کرتا تھا۔ معبد میں آواز کی بعض گشت نے کچھ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ یہ آمون کلام کر رہا ہے۔ تم ایک عقل مند انسان ہو آنکھ ماہو، تو پھر تم نے اپنی اس عقل مندی اور فہم و فراست کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ ایک جھوٹ کی مسلسل تکرار بسا اوقات باعث بنتی ہے کہ خود صاحب کلام ان مطالب پر یقین کر لیتا ہے۔ یہ مسلسل تکرار باعث بنی تھی کہ ہم بھی آمون کو ایک خدا تصور کرنے لگے۔ لوگوں کی جہالت اور نادانی اور دنیا کی دل فریب لذتیں بہت وسوسہ انگیز ہوتی ہیں۔ لوگ یہی چاہتے تھے، ہم نے بھی مفادات میں استعمال کیا، بس یہی۔ لوگوں کی یہ نادانی بھی آپ ہی کی اس جھوٹ کے باعث ہے جس کے تکرار پر آپ لوگ بھی اسے ہی سچ سمجھنے لگے۔ عوام احمق نہیں ہے، آپ لوگوں نے چونکہ حقیقت ان سے چھپائی، لہٰذا انہوں نے آپ ہی کے جھوٹ کو حقیقت سمجھ لیا۔ آپ ذرا حق و باطل کو ایک ساتھ ان کے سامنے پیش کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ بانو آسنات، ہم سر عزیز مصر شرف باریابی چاہتی ہیں۔ اجازت ہے؟ بانو آسنات کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔